Akanksha and you all welcome to the VC Education Academy. Today we will start from the exercise number 1.4, question number 5. Question number 5, we have to solve the word problem. Before starting the word problem, we have to understand the concept what is a word problem. First, we have to read the word problem properly and understand what they had asked us. And according to that, we have to give the answer. Let's start with the question number 5. In the question number 5, they ask a food court on profit of rupees 5 per unit by the selling a pizza and loss rupees 3 per unit by selling a burger. What mean that? एक फूड कोर्ट है जहां पे दो चीज मिलती है, पिज्जा और बर्गर. When they are selling the pizza, उन्हें 5 रुपए का प्रॉफिट होता है और बर्गर सेल करने के बाद 3 रुपए इसका लॉस हो जाता है. तो दैट इज अ मेन कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि फूड कोर्ट के अंदर दो चीजें मिल रही है, एक पिज्जा और बर्गर. पिज्जा सेल करेंगे तो 5 रुपए का प्रॉफिट, बर्गर सेल करेंगे तो 3 रुपीज का लॉस. नाउ व्हाट द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड अस, if there is a sale of 75 pizza and 160 burger, calculate the profit or the loss. तो उस फूड कोर्ट में, उस कैंटीन में उन्होंने 75 पिज्जा बेचे और 160 बर्गर बेचे हैं. तो व्हाट दे हैड अर्न, प्रॉफिट और लॉस. और अगर प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो कितने रुपए का उन्हें प्रॉफिट या लॉस हुआ है. सो नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड. How many pizza they had sold? 75. Profit on selling per unit of pizza. How many profit they have earned? This in rupees. Okay. How much profit they had earned on the selling of pizza? 5 rupees. So multiply by 5. Your total profit on selling 75 pizzas. So what we will get here is the profit on the selling of 75 pizza. 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 7s are 35 and 2 37. So how much total profit they have earned? 375 they have earned on selling a 75 pizza. 75 पिज्जा बेचने के बाद उनको 375 रुपीज प्रॉफिट हुआ. Now look for the burger. Okay, number of burger sold. कितना बर्गर हमने बेचा? 160. Loss occurred on selling per unit of burger. हर यूनिट सेल करने के बाद हमें कितना लॉस हुआ? How much loss we have earned here by selling a per unit? 3 rupees. Okay. So total loss occur on selling 160 burger. So now calculate. 3 zeros are 0, 3 6s are 18, 8 carry 1, 3 1s are 3 and 1 4. 480 rupees is a loss. So 375 rupees is profit. This is profit and this is loss. This is profit, okay, and this is loss. In last year, we have learned the profit and loss for some formulas. When the amount of the profit is less than loss or loss is a greater than profit, vice versa. If the loss is greater than profit, if the loss is greater than profit, then we have on the loss. We face the loss. तो हमें loss हुआ है.
How much loss? So loss का profit formula now we can write as loss कितना हुआ हमें 480 minus 375. So we can calculate here 480 minus 375. Cut 7, 10, 5 minus 10, 5, 7 minus 7, 0, 4 minus 1, 1. So what we have faced the loss? Rupees 105. This is the final answer. This is a final answer. So answer for the question 5A, they had asked us calculate the total profit or loss. So we have on the loss here and how much? Rupees 105. Got it? This sum is continued in the question B. How many more pizzas should be sold in order to earn a no loss or the situations of the number of the burger sold is 180, 160. तो अगर हमने 160 बर्गर सोल्ड करने के बाद हमें कितना लॉस हुआ 105 रुपीज हुआ, तो अभी हमें कितना और पिज्जा बेचना चाहिए, तो हम इस कंडीशन में आ जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हमें कितना और पिज्जा बेचना पड़ेगा. हाउ मैनी मोर पिज्जा शुड बी सोल्ड, हमें कितना और पिज्जा बेचना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव नो लॉस सिचुएशन, जो हमारा लॉस हुआ है 105 रुपीज का वो इक्वल हो जाए प्रॉफिट के इक्वल हो जाए if the number of the burger is sold in the 160. In the A part we have sold 160 burger, so how much pizza should be sold so we can equalize the profit and the loss. Okay, so loss occurred on selling 160 burger is rupees 105. Profit on selling per unit of pizza rupees 5. Therefore, number of pizza should sold in order to have no loss situation. तो हमें कितने पिज्जा बेचने चाहिए? There should be a no loss situation. So 105 divided by 5. Total loss हुआ है 105 रुपया. Profit on the selling of pizza is 5 rupees. So therefore 105 divided by 5. Now perform 5 divided by 105. One number, first we'll take 1. 1 is smaller than 5. 1 is smaller than 5. So 5 zeros are 0 minus 1 carries 0. Now the number is 10. 5 2s are 10. 0 0. We'll start with the unit place. 1 0 minus 0 0. 1 minus 1 1. Now we have took 5. 5 1s are 5. 5 minus 5 0. So how many burger we should sold? That is a 21 is equal to 21 burger. So how many burger we should sold? 21 burger to meet the situation, no loss and profit. Okay, so to meet question number 6. In a quiz based program, there are the 3 teams. तो एक क्विज चालू है, उसके अंदर 3 टीम है A, B and C. 3 टीम का नाम है A, B and C. There are the total 5 round in a game. तो ये जो क्विज है उसके अंदर 5 राउंड खेले जाएंगे. 20 marks for givens for the each correct answer. हमने अगर करेक्ट आंसर दिया, सही आंसर दिया, तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स. एंड
करेक्ट आंसर एंड -10 मार्क्स। अगर हमने गलत आंसर दिया तो हमें कितने मार्क्स मिले, हमारे कटेंगे -10 हो जाएंगे। फॉर द ईच रॉन्ग आंसर, अगर हमने सही मार्क्स दिया तो हमें 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने गलत आंसर दिया हमारे 10 मार्क्स हमारे टोटल में से कट जाएंगे। ईच रॉन्ग आंसर, number of marks deducted from not attempting questions, which team win the game। और अगर हमने क्वेश्चन का सही भी आंसर नहीं दिया गलत भी आंसर नहीं दिया, यानी हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो हमारे ना मार्क्स घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो कौन सी टीम जीती? देखो क्वेश्चन में पूछा गया है ए टीम ने 3 करेक्ट आंसर दिए, 2 रॉन्ग आंसर दिए और अटेम्प्ट और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। टीम ए ने 3 करेक्ट आंसर दिए और 2 रॉन्ग आंसर दिए, तो इन्होंने टोटल करेक्ट आंसर देके कितने अर्न किए? 20 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने 60 मार्क्स करेक्ट आंसर देके विन किए। उसके बाद उन्होंने गलत कितने आंसर दिए? -10 for the wrong answer. So what the answer? Minus should be -20. ओके, सो टोटल मार्क्स इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, इन्होंने इनको कितने मार्क्स मिले? टोटल मार्क्स इन्हें कितने मिले? 60 -20, 60 plus -20, so plus minus minus, so 60 -20 they had earned 40 marks। तो टीम ए को कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स। गॉट इट? देखो 3 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट दिए थे आंसर्स क्वेश्चन के, 2 उन्होंने रॉन्ग दिए और उन्होंने पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 3 क्वेश्चन 20 marks for the each question, so 16 marks they had earned for the correct answer, 2 wrong, so -10 for the wrong answer, so -20 हो गए उनके। 60 plus -20 40 they had earned। तो टीम ए ने कितने मार्क्स अर्न किए? 40 मार्क्स। नाउ टीम बी, सो यू कैन सेपरेट दिस वे। टीम बी ने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं? 2। तो करेक्ट आंसर देने के बाद दे हैड अर्न 20 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड दे हैड अर्न 40 marks for the giving correct answer। That 2 answers are wrong, so -10 for the 2 wrong answer, -20, and they have not attempted a question once, so there is a no question। total see 2 plus 2 plus 1, 5 राउंड हुए थे, 2 करेक्ट आंसर है, 2 रॉन्ग आंसर है और 1 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसका ना डिडक्ट होगा ना ऐड होगा। सो योर टोटल क्वेश्चन on 40 plus -20, so how much they had on plus minus minus, so 40 -20 they had earned 20 marks। उनको कितने मिले? 20 मिले। नाउ टीम सी का देखो 3 क्वेश्चन उन्होंने राइट किए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 20 दे अर्न 60 मार्क्स। Okay, one question only wrong, so multiply by -10, it will be the -10 only। and attempted no question, एक क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो इनका टोटलिंग कितना आएगा? 60 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस 16 -10 50। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? टीम सी के मार्क्स कितने हैं? 50 है। टीम बी ने अर्न किए 20 और टीम ए ने अर्न किए हैं 40। सो विनर इज अ टीम सी। क्या है? हमारी विनर है, क्योंकि इन्होंने क्या कितने टोटल मार्क्स कमाए हैं? 50 मार्क्स। क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड which team win the game? So answer is team C win the game। C won the game। Can write team C win the game। ओके, तो हमें हमारा आंसर है टीम सी विन द गेम। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
In maths question paper of engineering entrance exam, the total number of question is 50. इंजीनियरिंग में मैथ्स का पेपर है, इंजीनियरिंग एग्जाम में मैथ्स का पेपर है जिसके अंदर 50 सम आने वाले हैं. There are the 15 sums in a paper of the engineering of maths. Okay. According to the mark schedule, 5 marks given to the every correct answer. अगर आप एक भी करेक्ट आंसर लिखते हो so you can score 5 marks and -3 mark for every incorrect answer. और आपका अगर एक भी आंसर रॉन्ग होता है तो आपने जो भी स्कोर किया है उसमें से 3 मार्क कट जाएंगे. The 3 marks are deducted from your score. And 0 for the question not attempted. अगर you have not attempted any question, no marks going to get. Okay? तो आपको कौन से भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. क्वेश्चन में पूछा गया है सौरभ अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन. तो सौरभ ने 50 के 50 क्वेश्चन 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट ओनली 45 ऑफ देयर क्वेश्चन आंसर्स वर करेक्ट. लेकिन उस 50 क्वेश्चन में से उसके सिर्फ 45 राइट आए. व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन मैथ्स. तो उसने कितना स्कोर किया. देखो टोटल क्वेश्चन थे 50, उसमें से उसके 45 राइट आए हैं, तो रॉन्ग कितने हुए 5 क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है. नॉट अटेम्प्टेड, एक भी क्वेश्चन नहीं है उसके पेपर में. उन्होंने पूरे 50 के 50 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 45 राइट आए हैं, इसका मतलब 5 क्वेश्चंस आर रॉन्ग. ओके, तो उनको कितने मार्क्स मिले. सो टोटल क्वेश्चन attempted by Saurabh is equal to 50. तो टोटल कितने मार्क्स के 50 के 50 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए. ओके, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर are 45. Therefore, wrong answer will be 50 minus 45 is equal to 5. ओके, तो देखिए टोटल क्वेश्चन सौरभ ने अटेम्प्ट किए थे 50, उसमें से करेक्ट आंसर है 45 और रॉन्ग क्वेश्चन है 5. तो उसके 5 क्वेश्चन रॉन्ग गए हैं, 45 राइट आए हैं. सो टोटल मार्क्स इन्होंने कितने स्कोर किए 45 multiply by 5 mark for the each right question and 3 for each wrong question, right? So total marks इन्होंने कितने किए 45 multiply by 5. 5 5 are 25 का 5 carry 2. 5 4s are 20 and 2 22. So 225 marks इन्होंने क्या किए स्कोर किए राइट. ओके, तो सौरभ के कितने आंसर राइट थे 225 मार्क्स के उसके आंसर राइट थे. अभी इन्होंने 5 रॉन्ग किए हैं, तो फिर 5 3s are 15. ओके, तो 5 3s are 15 इनके रॉन्ग है. सो टोटल स्कोर ऑफ Saurabh in mathematics is how much 5. Now here addition and here is subtraction, so plus minus always minus, so we are going to perform a minus. So 5 minus 5 0, 2 minus 1 1 and 2. So total marks scored by the Saurabh is 210. क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है. Amol get 30 correct and 5 incorrect answer out of 15 question. What is the score in the mathematics? In question A हमने देखा था सौरभ का स्कोर, अभी हम देखेंगे अमोल अनमोल का स्कोर. ओके,
तो टोटल क्वेश्चन कितने थे 50, उसमें से उसने सिर्फ 35 अटेंड किए। 35 अटेंड किए यानी नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हो गए 50 minus 35, that is a 15 question he has not attempted. तो उसने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही नहीं। टोटल 50 क्वेश्चन में से उसने 35 अटेम्प्ट किए हैं, यानी 15 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए ही नहीं, अपियर नहीं किए, छुड़ाए नहीं, सॉल्व नहीं किए। ओके, अभी उस 35 क्वेश्चन में से उसके करेक्ट कितने आए हैं 13 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन कितने मिलेंगे रॉन्ग आए हैं उनके, और जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व नहीं किया उसके तो 0 मार्क्स मिलने हैं, तो वो तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो उन्होंने टोटल क्वेश्चन अटेंड किए हैं 35। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ अनमोल is 30. So how many score he got for the correct marks? For correct question 5. So 150 for the correct. 5 zeros are 0, 5 threes are 15. So 150 marks for the correct answer he had scored. Marks score by wrong answer. So marks scored by the wrong answer, how many? How many wrong? 5. How many he going to score for the wrong answer? -3. So minus 3 into 5, so -15. If we add this 2 plus minus minus 5, or you can do it by 150, you can do it rough work. 150 minus 15, 4, 10, 5, 4 minus 1, 3, 1, 135. Total score of Anmol is 135 marks. How much is 135 marks? So how many score of Anmol is 135? Got it? Question number 8. To conduct a science experiment, it is required to decrease the temperature from 36 degrees Celsius at the rate of 4 degrees Celsius every hour. हमें एक साइंस का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें हर घंटे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करना है। ओके, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द 10 hours? तो 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा? व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर द प्रोसेस बिगनिंग? अगर 10 घंटे के बाद ये जो हमने प्रोसेस चालू किया है हर घंटे लगातार 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने का, तो 10 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा? पहले हम समझते हैं कैसे होगा ये। देखिए, हमने एक नंबर लाइन की मदद से ये हेल्प मिल सकती है। ये है हर घंटे 4 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है। ये नंबर लाइन है और आप देखोगे कि ये नंबर लाइन में अगर आपने डिफरेंस देखा तो 4 का डिफरेंस है। हर दो नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस है। दिस इज द फर्स्ट टर्म। देखो, यहाँ हर नंबर के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो पहले घंटे में हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 4 से घटेगा, घट रहा है, सो विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं नंबर लाइन के, तो नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। और हमको टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, घटाना है। वी वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग 4 डिग्री सेल्सियस पर हार। तो पहले घंटे में टेम्परेचर 32 हुआ, सेकेंड घंटे में 28 हो जाएगा, थर्ड में कितना हो जाएगा?
थर्ड में 24, 4, 20, 5 घंटे में कितना हो जाएगा 16, 6 में 12, 7 में 8, 8 घंटे में 4, 9 घंटे में 0 डिग्री और 10 घंटे में ये -4 चले जाएगा. दिस नंबर शोज हार. दिस नंबर शोज हार्स. देखा हमारा टेम्परेचर कितना था 36 डिग्री सेल्सियस. जब हमने बिगिन किया था तो हमारा टेम्परेचर था 36 डिग्री सेल्सियस. इसको हमें 4 डिग्री सेल्सियस लगातार घटाना था 10 घंटे. तो ये जो ऊपर के नंबर है मैंने नंबर लाइन के ऊपर लिखे हैं वो घंटे हैं, लगातार घट रहा है टेम्परेचर. तो पहले घंटे में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, बाद में दूसरे घंटे में 28, तीसरे घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस. ऐसे लगातार 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना हो गया -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया. Then ask us what will be the temperature at the 10 hours after the process began. ये जो प्रोसेस कम होने का चालू हुआ था तो 10 घंटे के बाद ये कितना होगा टेम्परेचर. So you got the rough idea how the temperature is decreasing. Now we will present this in the sentence. Okay. So if you want to write this number line for your help, you can write it. So temperature at beginning of experiment is 36 degrees Celsius. Okay. It decrease by 4 degrees Celsius per hour. Therefore, temperature after 10 hours will be, what is the temperature after 10 hours? 4 degrees Celsius multiplied by 10 is equal to -40 डिग्री सेल्सियस. ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा. या यू कैन राइट डायरेक्टली 40 degrees. No need to write minus also. So 4 डिग्री सेल्सियस पर घंटे कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस. हमें पता लगाना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द प्रेजेंट. ओके. सो टेम्परेचर at 10 hours after the process begin is equal to 36 degrees Celsius minus 40 degrees Celsius. Answer will be -4 degrees Celsius. कितना हो जाएगा? This is +36, this is -40 डिग्री सेल्सियस किया हमने तो हमारा आंसर आया -4 डिग्री सेल्सियस. I have already taught you how on the number line how the temperature is moving backward and at end of the time we will get the temperature -4 degrees Celsius. We have completed the 1.4 exercise and from next lecture we will start for the 1.5. If you have any problem or you can write me in the comments. I will answer your question. Thank you.